Jai Hind. Hello my dear friends, you are most welcome in this channel UG and PG classes channel. Today we are with a new video and in this video we will going to see polity, okay, Indian polity you can say, and this is the new series I have started for you all of guys, and in this video actually we will discuss about the basic of Indian constitution, you can say Constituent Assembly. We will start from Constituent Assembly till preamble we will discuss, okay, including drafting committee etc. And this is series for the Indian polity, okay, this is new series for Indian polity you can say, and in this series we will completely discuss the main basic the foundation course for the polity, Indian polity, and the from zero level to UPSC level. And actually this is the book for CDS, okay, CDS, and this is now actually very important. You can see here CDS, okay, CDS का book है ये, and really it is going to a very wonderful session. Friend, let's begin. Okay, so entire polity we will discuss in this series and include part in part. Okay, this is the first part. Now the first thing we will discuss about the Constituent Assembly, or you can say the framing of the Constituent Assembly. Okay, now listen, try to read, okay, try to read and try to understand. Now the Indian National Congress had officially for the first time demanded a Constituent Assembly in 1935. So friend, in 1935 the officially Indian National Congress were the one who demanded for the Constituent Assembly in 1935. Now the idea was given by M.N. Roy. Which idea? The Constituent Assembly ka idea. Okay, idea was given by M.N. Roy. These are very important question. Any point can be asked as a MCQ. Okay, as a MCQ. So be alert. Each and every point is very important because this is the crux of the polity, है ना. We will discuss very important facts about the Indian polity in this series. Okay, this is first video and definitely I will assure your success in this after watching this, and we will see question answer on polity also after completing the polity section. Okay, so now next, so the idea was given by M.N. Roy in 1935. Officially Constituent Assembly were demanded for the first time by Indian National Congress. Okay, now the British government accepted the demand in August offer. देखिए यहाँ पर 1935 में डिमांड को मांग कर लिया गया था, बट इट वाज एक्सेप्टेड इन 1940 इन अगस्त ऑफर. ठीक है, it was accepted in 1940 in August offer, and finally the Cripps proposal on the framing of the constitution come out in 1942. Okay friend, तो finally which when it was come out, so it was come out in 1942 according to the Cripps proposal. ठीक है, Cripps proposal. Now under the cabinet mission plan, एक लाइन इंपॉर्टेंट बार बताया जा रहा है. अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान द कंस्टिट्यूएंट असेंबली कम इनटू एग्जिस्टेंस इन नवंबर 1946. फ्रेंड, विच प्लान द कंस्टिट्यूएंट असेंबली कम अप इन द एग्जिस्टेंस? तो कैबिनेट मिशन प्लान. ओके, द कैबिनेट मिशन प्लान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946, दैट इज द नवंबर 1946. Now what are the features of this Constituent Assembly? We will see this one. So the features, or you can say the main function, actually features that, okay, the total strength of this Constituent Assembly was 389 member were total, including 389, 296 member were from the British India, okay, and 93 member were from the princely estate. Okay friend, 296 member from the British India and 93 member were from the princely estate. ठीक है, नाउ ये याद रखिएगा. इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट वन, every provinces and princely state were allotted seat in proportion to their population. So according to population of that state, or you can say that provinces or princely state, है ना, seat were allotted.
Okay, now the next provision, you can say features of this constituent assembly was the seat for British were divided among Muslim, Sikh and general. ब्रिटिश का जो था ना, ब्रिटिश के लिए जो सीट थे वो किस किस में डिवाइड किया गया था, मुस्लिम एंड सिख एंड देन जनरल पीपल में. दीज पीपल वर डिवाइडेड द सीट ऑफ ब्रिटिश. नाउ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कम्युनिटी वेर इलेक्टेड बाय वोटिंग इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थे ना, यहाँ पर ईच कम्युनिटी का जो थे मेंबर को इलेक्टेड किया गया था यहाँ पर फॉर वोटिंग पर्पसेस. ओके, ईच रिप्रेजेंटेटिव वेर मेड. Now the head of the princely state nominated their members. Okay, which one, यहाँ पर भी important बात है. The head of the princely state nominated their members. Okay, who nominated their member? Head of the princely state nominated their member. Now the elections were held in July to August 1946. मतलब कि जुलाई से अगस्त तक यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्शन को हेल्ड किया गया. Okay, to become the members. Listen, to become the members. Now the first meeting was held on December 9, 1946 with only 211 members. Friend, as I already told you that total there were 389 members. Okay, यहाँ पर समझिएगा 389 member total थे initially, and in which 289 from the British India and 93 member were from the वो प्रिंसली स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पर जो है 211 मेंबर ही क्यों ज्वाइन किए यहाँ पर, बिकॉज फ्रेंड दिस फर्स्ट मीटिंग वेयर व्हाट, मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द फर्स्ट मीटिंग. ठीक है, मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द फर्स्ट मीटिंग एंड दिस वेयर नॉट, मतलब कि यहाँ पर ना सीट कुछ वैकेंट रह गए थे, अभी मैं आपको उसको बताऊंगा आगे. ठीक है, सो 211 मेंबर वेयर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस फर्स्ट मीटिंग. नाउ princely state decided to stay away from the what, so their seat remain vacant. यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट थे ना, 211 ही मेंबर क्यों थे यहाँ पर, क्योंकि मुस्लिम लीग बायकॉट किया था, और जो प्रिंसली स्टेट जो थे वो क्या कर दिए थे, इससे दूर ही रह गए थे, स्टे अवे हो गए थे इससे. ठीक है, ज्वाइन नहीं किए थे फर्स्ट मीटिंग को. नाउ हाउएवर आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान ऑन June 3, 1947 मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट ज्वाइंड इट. मतलब कि जो भी प्रिंसली स्टेट यहाँ पर रिमेन मतलब स्टे अवे हो गए थे इससे, मतलब अलग हो गए थे, नहीं ज्वाइन किए थे, वो माउंटबेटन प्लान के एक्सेप्ट होने के बाद जो है ना वो भी ज्वाइन कर लिए, मैक्सिमम उसमें से ज्वाइन कर लिए थे. द अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस वे आर डिक्लेयरिंग एज असेंबली टू बी अ फुल्ली सॉवरेन बॉडी एंड ऑल्सो अ लेजिस्लेटिव बॉडी. यहाँ पर जो असेंबली जो था ना वो एक सॉवरेन बॉडी था यहाँ पर, और लेजिस्लेटिव बॉडी भी था. ठीक है, मतलब कि नियम कानून भी बनाने वाला और खुद का सॉवरेन था, किसी का मतलब इस पे वो ना चले. ठीक है, किसी का इस पे डोमिनेंसी ना चले, है ना, खुद का अपना डिसीजन लेता था ये. ओके, ये पावर खुद को मिला था. अब देखते हैं नेक्स्ट जो है ना यहाँ पर वो ये कि आखिर इसका फंक्शन क्या था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो है ना वो फंक्शन क्या था वो देखते हैं, एंड देन वी विल सी द ड्राफ्टिंग कमेटी. फ्रेंड, दिस वीडियो ना I can assure that very important for you. Okay, so be alert and remainly, मतलब कि continually you have to revise it. Okay, so revise again and again. So now the next and function. Okay, function. The Constituent Assembly drafted the Constitution and also Constituent Assembly जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को तो ड्राफ्ट कर बे किया, लेकिन और क्या क्या किया उसको हम लोग देखते हैं. ऑल्सो अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन July 22, 1947 एंड इट वाज डिज़ाइन बाय पिंगली वेंकैया. ये कितने बार पूछा गया है, ये RRB एक्सेट्रा SSC वगैरह के एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है. और ये मैं आपको बता दूँ, आप UPSC लेवल के पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, UPSC, स्टेट PCS एंड अदर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये साबित आप सभी के लिए. कोई ऐसा फैक्ट ना हो जो इम्पॉर्टेंट हो और बच गया हो, इसमें हर फैक्ट को वो किया गया है. ठीक है, ऐड किया गया है, तो ध्यान से समझेंगे. ओके, तो यहाँ पर क्या है कि फंक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, इट वाज ड्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन July 22, 1947 एंड इट वाज डिजाइन्ड बाय पिंगली वेंकैया. So national flag were adopted on what? So national flag were adopted on 22 July 1947 and it was designed by Pingley Venkaiah. Now ratified India's membership of Commonwealth in May 1940
1949. So the Commonwealth में जो है ना India's membership it was ratified in 1949. Okay, and adopted the national flag national song on January 24, 1950. So friend यहाँ पर नेशनल फ्लैग को जुलाई में ही अडॉप्ट कर लिया, जुलाई 1947 में, एंड देन नेशनल फ्लैग जो है ना उसे जनवरी 24, 1950 को अडॉप्ट किया गया. ओके, एंड अडॉप्टेड द नेशनल एंथम. ओके, नेशनल एंथम जो है उसे कब अडॉप्ट किया गया? जनवरी 24, 1950 को ही. मतलब कि फ्रेंड यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है. ठीक है, नेशनल फ्लैग को जो था वो अडॉप्ट कब किया गया था? तो जुलाई 22, 1947 को अडॉप्ट किया गया था. एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम दोनों को एक ही दिन अडॉप्ट किया गया है, जिस दिन जनवरी 24, 1950 को ही अडॉप्ट दोनों को किया गया है. नेशनल फ्लैग और नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों को. और नेशनल फ्लैग को कब किया गया है? जुलाई 22, 1947 को. ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट वन इज द elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of the of India on January 24, 1950. और इसी दिन जनवरी 24, 1950 को ही, जिस दिन नेशनल सॉन्ग को और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे इंडिया का, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे ये इंडिया का. नाउ अब वी विल डिस्कस अबाउट द ड्राफ्टिंग कमेटी. फ्रेंड ओनली मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या देख लिए हम सब. तो यहाँ पर देख लिए इसका फीचर्स देख लिए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देख लिए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फीचर्स को देख लिए, इसके फंक्शंस को देख लिए. अब हम लोग देखने जा रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को. ओके, सो नाउ tuned with drafting committee. The Constituent Assembly contained many committees for various purposes such as House Committee, Rule of Procedure Committee, etc. Okay, the Constituent Assembly जो है ना contained many committees. Constituent Assembly जो है contained many committee. आखिर जो यहाँ पर इतने मेंबर हो गए 389 मेंबर समथिंग और जो भी थे, जो भी फंक्शन फीचर्स अभी आपको बताया गया, ये सब कर लेने के बाद जो है ना ड्राफ्टिंग कमेटी की लाइन आती है. ठीक है, अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है वो समझिए. कंस्टिट्यूएंट असेंबली कंटेंड मेनी कमिटीज़. क्या ये बहुत सारे कमेटी को क्या किया? कंटेंट किया बाद में. नाउ फॉर वेरियस पर्पसेस, इसका पर्पस अलग अलग था कमेटी का, जैसे कि हाउस कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी एटसेट्रा. ओके, और भी बहुत कमेटी है, अभी हम देखेंगे उस कमेटी के भी बारे में. ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी. अ लॉट ऑफ कमेटी वेयर कंटेंड और वेयर फ्रेम्ड इन व्हाट इन constituent assembly, but most important was the drafting committee. Okay, it was set up in August 29, 1947. So drafting committee was set up in August 29, 1947 and was tasked with प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि फ्रेंड यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी को जो इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया था ना वो टू ड्राफ्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, व्हाट वाज द टास्क गिवन टू ड्राफ्टिंग कमेटी? टू ड्राफ्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द 7 मेंबर ऑफ द कमेटी वेयर. तो फ्रेंड यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है अक्सर कि हु वर द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. एक्चुअली ना ये यूपीएससी में भी ये पूछे जा चुके हैं. आई थिंक प्रीवियस 8-9 ईयर बैक्स पूछे गए थे कि 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें पूछा गया था कि हु वॉज द मेंबर ऑफ ड्राफ्ट, हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. ठीक है, इसमें से कौन है जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं है, ये पूछा गया था, जिसमें से 3 ऑप्शन इसमें से दिए गए थे. ठीक है, और चौथा ऑप्शन कोई अदर पर्सन थे. ठीक है, चौथा ऑप्शन कोई अदर पर्सन थे जिसे टिक करना था कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं है. बाकी ये भी और के मुंशी भी ये सब हैं. तो अभी एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं कौन कौन से मेंबर थे यहाँ पर, वो देखते हैं. ठीक है, so the 7 member of drafting committee were Dr. B.R. Ambedkar, he was the chairman of the drafting committee. N. Gopalaswamy Iyer, ठीक है ना, N. Gopalaswamy Iyer member of the drafting committee. K.M. मुंशी, डॉक्टर K.M. मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर थे. T.T. कृष्णमाचारी, ठीक है, T.T. कृष्णमाचारी भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर ही थे. मतलब ये सब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर ही हैं. नाम बस एक बार आप रीड कर लीजिए अच्छे से. ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, T.T. कृष्णमाचारी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला. ठीक है, याद करिएगा नामों को. ओके, साथ साथ में रिपीट करिएगा, सैयद मोहम्मद सदुल्ला. नेक्स्ट N. माधव राव एंड
Alladi Krishnaswamy Iyer. So these were the member of drafting committee. Okay, once again, just repeat with me. Okay, friend, repeat with me. Let's start. Dr. B.R. Ambedkar as a chairman, N. Gopalaswamy Iyer, K.M. Munshi. You also repeat. आप भी साथ साथ में बोलिए, ठीक है. K.M. Munshi, T.T. Krishnamachari, Sayyid Muhammad Sadullah, and M. Madhav Rao and Alladi Krishnaswamy Iyer. So these are the 7 member of drafting committee. And the question, you can say, the question may be asked as who was the chairman of the drafting committee. Then B.R. Ambedkar is the chairman of drafting committee. ठीक है friend. Now the first drafting committee, you can say the first draft of the constitution was published in February 1948. friend, the first draft जो था ना, first draft जो था वो कब publish किया गया था? तो ये 1948 को publish किया गया था. And the people had 8 months to discuss the draft. People took 8 months. There were 8 months initially took to discuss the draft. After the discussion, suggestion and proposed amendments were considered. Okay, जब यहाँ पर डिस्कशन हुआ ना, तो डिस्कशन के बाद जो भी सजेशन मिला, उन सजेशन को प्लस में जो भी उसमें अमेंडमेंट किए गए, सबको करने के बाद फाइनली सेकेंड ड्राफ्ट जो थे ना, सेकेंड ड्राफ्ट वे आर प्रिपेयर्ड बाय द असेंबली एंड द सेकेंड ड्राफ्ट वाज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1948. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फरवरी में पहला ड्राफ्ट प्रपोज किया गया, फिर इस पर खूब डिबेट डिस्कशन बहुत तरह के हुए यहाँ पर, और डिबेट डिस्कशन हो जाने के बाद जो है ना, इसका कुछ सजेशंस मिला एंड देन अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया. जो भी उसमें गलती हुई, जो भी गलती निकाली गई थी 8 मंथ के बनाने के दौरान, उस गलती को सुधार करके फिर नया सेकेंड ड्राफ्ट को प्रपोज किया गया अक्टूबर में 1948 में. देखिए, फरवरी से अक्टूबर ऐसे ही नहीं लगते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ना बहुत समय लगा है. ठीक है, यहाँ पर अभी वो भी आने वाला है. टोटल 2 year 11 month एंड 18 days लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. ओके, नाउ नेक्स्ट वन यहाँ पर जो है, तो अमेंडमेंट वगैरह प्रपोज करके जो सेकेंड ड्राफ्ट जो है ना, वो अक्टूबर 1948 में प्रपोज किया गया. जो समझाया जा रहा है ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को 1-2 बार और वॉच करिएगा, आपको याद हो जाएंगे. ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, समझना है चीज़ों को. द ड्राफ्टिंग कमेटी मेट फॉर अ टोटल ऑफ 141 days एंड टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट. ओके, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी की भी बात की जा रही है. कितने? 141 days यहाँ पर टोटल लगे थे फ्रेंड. ओके, और फाइनली लेस देन 6 months टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट. सोचिए, एक ड्राफ्ट को बनाने में जो है ना 6 months लगे थे लगभग, उससे थोड़े बहुत कम लगे थे. आगे देखते हैं, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आखिर कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्टमेंट में यहाँ पर क्या किया जाता है उसे देखिए फाइनली. ओके, एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रियम्बल को देखेंगे. द इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस ऑन November 26, 1949 एंड January 26, 1950. फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट, एक्चुअली इट वाज इन्फोर्समेंट, आई थिंक आई हैव enforcement, so okay, good, don't worry. Okay, so enactment and enforcement were done on November 26, 1949 and January 26, 1950. यहाँ पर लिसन, एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी. ओके, तो ये इनैक्टमेंट कब किया गया था? तो इनैक्टमेंट किया गया था जनवरी 1949-26 को, यानी 26 नवंबर 1949 को जो है ना, इसे इनैक्ट किया गया था, इनैक्टेड किया गया था यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को. और इसको इन्फोर्समेंट कब किया गया था? तो ये लागू किया गया था फाइनली 26 जनवरी 1950 से. ठीक है, 26 जनवरी 1950 से. आगे देखते हैं. However, some part had come into force on 26 November 1949 itself. With the passing of the motion, the Constitution as settled by Assembly to be passed. यहाँ पर फ्रेंड कुछ ऐसे इसका प्रोविजंस थे ना, कुछ ऐसे जो थे वो 26 नवंबर से ही लागू हो गए थे, कुछ समथिंग है ना. विद द पासिंग ऑफ द मोशन, जिस समय मोशन पास हुआ था उसी समय से लागू कुछ चीज़ें हो गए थे. फॉर एग्जांपल, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली टू बी पास्ड, मतलब कि वहाँ पर ये अज्यूम कर लिया गया था असेंबली के द्वारा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पास ही है, समझिए. नाउ इन ऑल 284 ऑफ द असेंबली साइंड द ऑफिशियल कॉपीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950. यहाँ पर जो है फ्रेंड 284 जो है ना असेंबली जो है ऑफ द असेंबली मेंबर, यू कैन से इन ऑल, जो कितने थे टोटल 389 थे ना टोटल.
मेंबर, जिसमें से कि 296 थे और आई थिंक 289 थे एंड इधर 93 थे। ओके, तो यहाँ पर जो है ये जो मेंबर थे ना टोटल, फाइनली जो टोटल मेंबर थे उसमें से 284 मेंबर ऐसे थे ना जो इस ऑफिशियल कॉपी पे साइन किए थे इस पर असेंबली वाले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है, 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया गया था उसमें। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 कंटेन्ड अ प्रीएम्बल दैट इज 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। मतलब कि फ्रेंड यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किए थे उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, प्रीएम्बल था एक, फिर 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आरआरबी में, रेलवे में और फिर एसएससी में भी पूछे गए हैं और अदर एग्जाम्स में जैसे एमटीएस वगैरह में भी पूछे गए हैं। ध्यान रखिए क्या क्या पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949। फर्स्ट क्वेश्चन, इट कंटेंट व्हाट, इट कंटेंट प्रीएम्बल, ये तो इजी है। एंड initially how many article were there, तो 395 article were there in the constitution and 8 schedule, totally 8 schedule were that time। okay, 8 schedule, अभी कितने 12 schedule है अभी, ठीक है। आगे देखते हैं, the constituent assembly took 2 year 11 month and 18 days to complete the constitution। फ्रेंड ये हम आपको बता चुके थे लाइन पहले ही, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था, 2019 के एमटीएस में पूछा गया था, ठीक है, 2019 के एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगाया था पूरे बनने में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रीएम्बल, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर अभी हमने क्या क्या देखा है एक बार सम अप कर लेते हैं उसे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ड्राफ्टिंग, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मेकिंग का, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। 1935 में जो था ना वो एम.एन. रॉय के आइडिया के द्वारा बना गया था। अगस्त ऑफर एक्सेप्ट किया, मतलब कि यहाँ पर एम.एन. रॉय के आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और फिर जो है नेशनल कांग्रेस जो है ना वो फर्स्ट टाइम डिमांड किया था और फिर क्या किया कि अगस्त ऑफर के द्वारा 1940 में जो है ना इसे अडॉप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया था। एंड फाइनली द क्रिप्स मिशन के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, ये मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए 1942 में वो हो गया था, है ना, परमिशन हो गए थे। अब अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट इनटू द 1946 नवंबर में एग्जिस्टेंस में आया, जिसमें कि मेंबर टोटल कितने थे, 389 मेंबर थे। 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से थे, 93 मेंबर जो प्रिंसली स्टेट से थे। अभी बता दिए सब चीज़ें, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसे। ओके, बाकी ये सब सीट जो था पॉपुलेशन के द्वारा ही अलॉट किए गए थे, ये सब आपको पता है। ब्रिटिश इंडिया का जो था वो मुस्लिम, सिख और जनरल में डिवाइड किया गया था सीट को। इसके बाद क्या रिप्रेजेंटेटिव जो थे ईच कम्युनिटी के द्वारा इलेक्टेड थे। वोटिंग जो थे वो प्रिंसली लेजिस्लेटिव असेंबली के भी थे। ओके, इसके बाद जो है फ्रेंड ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग जो था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि टोटल 211 ही मेंबर थे, क्योंकि मुस्लिम लीग उसे बाइकआउट भी किया था, है ना। और प्रिंसली स्टेट जो थे ना वो उससे स्टे अवे हो गए थे, ज्वाइन नहीं किए थे, वैकेंट थे। लेकिन माउंटबेटन प्लान जब एक्सेप्ट हो गया 3 जून 1947 को, मोस्ट प्रिंसली स्टेट वर ज्वाइंड इट। ओके, ये डिस्कस हो चुका है हम लोग का। बाकी इसके फंक्शन देखे थे, जो कि नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को यहाँ पर स्वीकार किया गया था, जो कि पिंगली वेंकैया के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और इसके कॉमनवेल्थ का मेंबर 1949 में रेक्टिफाई किया। इसके बाद देखें हम लोग कि नेशनल फ्लैग जो है ना, नेशनल फ्लैग को जनवरी 24, 1950 में, और नेशनल एंथम को भी उसी दिन 24, 1950 जनवरी में ही किया गया था अडॉप्ट, ठीक है। और इलेक्टेड अगर प्रेसिडेंट की बात करें इंडिया का, तो 24 जनवरी 1950 को ही बने थे, जो कि राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये तीनों ना 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। हो गया कंप्लीट, फंक्शन भी और वो भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी देखे, इसके 7 मेंबर थे, जो कि 7 मेंबर का नाम भी यहाँ पर हम लोगों ने देखा। ओके, जो कि मेंबर कौन कौन से थे ये भी देख लेते हैं अभी तुरंत। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, T.T. कृष्णमाचारी, सैयद मोहम्मद सुद्दाल्ला, ओके, M. माधवराव एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो देखिए इस तरह से आपको ना स्पीड में इसको रीड करना होगा साथ साथ में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें फिर क्या था। ये अक्टूबर और फर्स्ट ड्राफ्ट कब बना, फरवरी में फर्स्ट ड्राफ्ट को लाया गया, फिर इसमें डिस्कशंस खूब अच्छे से चले, फिर अक्टूबर में लाया गया सेकंड ड्राफ्ट को, ये सब चीज़। और टोटल 141 डे वगैरह मेट यहाँ पर क्या किए गए थे,
मतलब कि 141 दिन यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए यहाँ पर मीटिंग को बैठाया गया था, ठीक है ना, जो कि 6 महीने से लगभग थोड़े बहुत कम टाइम लगे थे। टोटल 141 मीटिंग हुई थी ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए, ठीक है फ्रेंड। ये सब था टोटल, यहाँ पर देख लिए सबको जस्ट। अब इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम लोग देखे थे, जिसमें कि फर्स्ट टाइम जो था ना यहाँ पर क्या क्या दिया गया था इसे। इनैक्टमेंट कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, और इन्फोर्समेंट कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किए, एंड देन फर्स्ट में क्या कंटेंट किया था, 301 प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल था और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। और फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो था ना 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था कंप्लीट होने में कॉन्स्टिट्यूशन को, ओके। अब हम लोग देखेंगे प्रियम्बल, ठीक है फ्रेंड। प्रियम्बल आई थिंक टाइम भी हो रहे हैं, अभी 25 मिनट हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं, प्रियम्बल को देख करके हम जल्दी से इसे समाप्त करते हैं, ठीक है। द प्रियम्बल ऑफ टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो फ्रेंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर दैट द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन व्हाट। So friend, preamble is based on the objective resolution. Objective resolution what? The objective resolution which was the Pandit Jawaharlal Nehru introduced an objective resolution on December 13, 1946 and it was adopted by Constituent Assembly on January 22, 1947. तो फ्रेंड यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड किस पे है, तो ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, जो कि फॉरवर्ड किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, एंड मतलब वही इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को दिसंबर 13, 1946 को, और इट वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। दिसंबर में मान के चलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और फिर अडॉप्ट किया गया था कब, जनवरी में अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी को 1947 में, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि द ड्राफ्टिंग कमेटी of the constituent of the assembly, you can say the drafting committee of the assembly is formulating the preamble in the light of objective resolution. मीन्स फ्रेंड यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो था प्रियम्बल को कैसे फॉर्म किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए उसको फॉर्म किया था, ठीक है। रेजोल्यूशन फेल्ड दैट द प्रियम्बल शुड बी रेस्ट्रिक्टेड बी डिफाइनिंग द एसेंशियल फीचर्स of the new state and its basic socio-political objectives and the other matter dealt with the resolution could be provided in the substantive parts of the constitution. यहाँ पर जो है ना ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बताया ना कि प्रियम्बल वो चीज़ होने चाहिए जो कि मतलब कि मेन फीचर्स को यहाँ पर दिखा दे, मेन फीचर्स को जो है ना रिजोल्यूशन के साथ प्रियम्बल में डिनोट कर देना है, प्रियम्बल में दर्शा देना है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होने वाला है, ओके। इसके बाद द कमिटी अडॉप्टेड द एक्सप्रेशन ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन प्लेस ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक टू यूज इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। The committee adopted the expression sovereign democratic republic in place of sovereign independent republic as used in the objective resolution. फ्रेंड यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ना उसमें सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक यहाँ पर यूज किया गया था उस समय, ठीक है। लेकिन कमेटी किस चीज़ को अडॉप्ट किया, तो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अडॉप्ट किया, ठीक है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अडॉप्ट किया था। इसके बाद क्या है, द कमिटी एडेड द वर्ड फ्रैटर्निटी विच वॉज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। द कमिटी फेल्ड दैट द नीड फॉर द fraternal concert that is concord and goodwill in the India was never मतलब greater than now. मीन्स फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जा सकता है, एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जा सकता है, कैसे किस रूप में पूछा जा सकता है उसको देखिए कि was sovereign democratic republic word mentioned in the objective resolution? Then finally you have to answer that is no. Sovereign democratic republic were not mentioned in the objective resolution. Then what was mentioned? So sovereign independent republic were mentioned. ध्यान रखिएगा, independent republic mention था यहाँ पर objective resolution में. Now next question can be asked in this that the committee मतलब कि the fraternity word was mentioned in the objective resolution. तो no sir, fraternity was not mentioned in the objective resolution, okay, but committee adopted that one also, ठीक है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें, अब हम लोग कुछ देखते हैं प्रियम्बल का जो है ना कुछ टर्म को देखते हैं, मतलब कुछ अदर फैक्ट्स को देखते हैं। द टर्म प्रियम्बल मीन्स द इंट्रोडक्शन टू द स्टैचू, ठीक है। द प्रियम्बल मीन्स टू मतलब कि इंट्रोडक्शन टू अ स्टैचू, इट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो प्रियम्बल है ना फ्रेंड, वो क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या चीज़ फाइनली, कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनली है क्या चीज़, वो हम सिर्फ और सिर्फ एक पेज का वो प्रियम्बल को पढ़ के पता कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस रूप में आधारित है, वो प्रियम्बल में दिखा गया है। जैसे कि आप कोई भी बुक पढ़ते हैं ना, इफ़ यू रीड एनी बुक, देन जो समरी होता है ना बुक का, उस समरी को पढ़ लेने के बाद, उस चैप्टर का जो है, मतलब किसी भी चैप्टर का समरी को पढ़ लेने के बाद उस चैप्टर के बारे में आप आइडिया लगा लेते हैं। इसी तरह से प्रियम्बल ये भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है ना, इसे पढ़ लेने के बाद आप फाइनली पता कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, ठीक है। इनिशियली द प्रियम्बल वाज ड्राफ्टेड बाय BN राव। फ्रेंड यहाँ पर जो प्रियम्बल जो है ना, इनिशियली जो है BN राव के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था इन his memorandum of May 30, 1947 and was later reproduced in the draft of October 7, 1947। यहाँ पर जो है BN राव का जो मेमोरेंडम था उसमें जो है प्रियम्बल को क्या किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था, एंड देन ये लेटर इसको रिप्रोड्यूस कब किया गया था, अगेन इस ड्राफ्ट को रिप्रोड्यूस कब किया गया था, तो अक्टूबर 7, 1947 को रिप्रोड्यूस किया गया था। नाउ इन दिस कंटेंट्स द deliberations by the constituent assembly the preamble was reformulated। मतलब कि यहाँ पर जो constituent assembly के द्वारा जो डेलिब्रेट किया गया ना, उसमें preamble को जो है reformulate किया गया। Now the preamble does not grant any power but it gives a direction and the purpose to the constitution। फ्रेंड यहाँ पर जो preamble है ना, किसी भी तरह का कोई पावर नहीं देता है, ये लाइन आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैन preamble grant पावर, नो, ओके, बट इट गिव्स द डायरेक्शन एंड पर्पस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ इट आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो है फ्रेंड ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना आउटलाइन दे देता है, अभी जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, ठीक है। पूरे आउटलाइन दे देता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, ओके। द प्रियम्बल कंटेन्स द फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल टू एन एक्ट सेट आउट द मेन ऑब्जेक्टिव विच इज़ द लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू अचीव। मतलब यहाँ जो है फ्रेंड प्रियम्बल कंटेन द फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखिएगा, जो प्रियम्बल है ना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल को कंटेन करके रखता है, ठीक है। एंड द प्रियम्बल टू एन एक्ट सेट आउट द मेन ऑब्जेक्टिव विच द लेजिस्लेशन इन इंटेंडेड टू अचीव। मतलब कि प्रियम्बल में जो है ना मेन ऑब्जेक्टिव को भी यहाँ पर क्या करके दिया गया है, दे दिया गया है। अब भी जो है ना हम लोग प्रियम्बल्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। आखिर हमारा प्रियम्बल है क्या, तो बस हम लोग सिर्फ प्रियम्बल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ना साइलेंट फीचर वगैरह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। तो प्रियम्बल को देख लीजिए, ध्यान से इसे याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है ये भी। देखिए ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। सो तो ये स्टार्ट होता कहाँ से है, तो ये स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। मतलब कि आपको एक ही लाइन में इतना सब बोल देना है। क्या बोलना है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही बोलना है जैसे हम बोल रहे हैं, रिपीट करिएगा मेरे साथ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to its all citizen, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, बोलिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। क्या क्या सिक्योर कराना है पूरे सिटीजन को, जस्टिस। तो जस्टिस कितने तरह की होनी चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग ऑल देम। मतलब कि टू प्रमोट देम अमंग ऑल। अब यहाँ पर क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट की बात करता है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ, वर्शिप एटसेट्रा की लिबर्टी देता है, ठीक है।
इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, मतलब कि स्टेटस की इक्वलिटी देता है, एंड अपॉर्चुनिटी, है ना, स्टेटस की इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, अब क्या क्या प्रमोट करने को बोल रहा है पूरे सिटीजन में, तो ये प्रमोट करने को बोल रहा है फ्रैटर्निटी, भाईचारा को प्रमोट करना है। अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यहाँ पर जो है फ्रैटर्निटी को अश्योर करना है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को अश्योर करना है, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को अश्योर करना है। इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of the November 1949 do hereby adopt, enact and give myself to the constitution. Thank you friend। यहाँ पर ना एक्चुअली एक थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो है ना ये प्रियम्बल कंप्लीट हो गया था आई थिंक, एक बार और दोबारा रिपीट कर लीजिए, पाउस हो गया था ये आई थिंक वीडियो जो, सो डोंट वरी, स्किप दैट एंड इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट among them all fraternity assuring the dignity of individual and the unity of the integrity of the nation। देखिए इस तरह के अगर स्पीड में आप याद करिएगा ना तो याद जल्दी हो जाएगा, बीच बीच में रुक रुक के सोचते रहिएगा तो जल्दी याद नहीं होगा। जहाँ पर थोड़ा सा ना ये कॉमा वगैरह है वहाँ पर हल्का हल्का रुक रुक करके पढ़िए, समझ के याद करिए, ये ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, एक दो बार में याद हो जाता है। एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन Constituent Assembly this 26th day of the November 1949 do hereby adopt and enact to give to ourselves the constitution। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर जो है ना एक्चुअली ना ये जो प्रियम्बल है नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसे देखेंगे, इसके बाद ये सब देखेंगे कौन वर्ड को कब ऐड किया गया था इसमें जो है ना, थोड़ा सा यहाँ तक देख ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी प्रियम्बल को हम देखेंगे, ध्यान रखिएगा, बस थोड़ी सी रिवाइज कराएंगे, ओके। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर हैव बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। यहाँ पर जो है ना सोशलिस्ट सेक्युलर जो है वो कब ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। एंड ऑल्सो यूनिटी ऑफ नेशन वाज अमेंडेड टू रीड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पर जो है यूनिटी ऑफ नेशन जो था ना वो क्या किया, अमेंडेड करके इसको रीड किया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। मतलब कि प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, प्रीलिम्स में पहले ही पूछा गया था कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल। तो ऑब्जेक्टिव है इसका जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी को अडॉप्ट करना, मतलब कि उसको क्या करना, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड द अल्टीमेट गोल इज़ द सिक्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब कि इसका अल्टीमेट गोल क्या है, तो इसको डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को सिक्योर करना है और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को सिक्योर करना है, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग ना नेक्स्ट देखेंगे साइलेंट फीचर नेक्स्ट वीडियो में, और होप आप इसे समझे होंगे अच्छे से। एक दो बार और इसे देखिए और वीडियो को समझने की कोशिश करिए, और टाइम थोड़ा सा कम लगे इसलिए थोड़ा सा स्पीड में मे बी अगर ऐसा हो सके, मे बी स्पीड हो गया होगा तो कोई बात नहीं, आप उसमें एडजस्ट करिए और फिर फाइनली आपके रिस्पांस के अनुसार नेक्स्ट वीडियो में स्पीड वगैरह को सुधारा जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।